بات کو پیش کیا جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے. دیکھیں غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے. اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا, جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا. رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں, بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ. 3 دن لگتے ہیں رسول کی حج کو لے کے. جو غدیر خم کے میدان میں پالان شجر کے منبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے, مجمع بے جان رسول پورا خطبہ دے رہے, وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا, اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے. بڑھتی جا رہی ہے بیماری. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا, پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے. یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے, اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا, ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے, ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا, کئی بار ملتا تھا دن میں, پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے. ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے, مدینے والوں رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے. آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں. پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں, تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہو, ساری مسجد بھر گئی. 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم. اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے, تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے. ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے, دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا. میں نے کہا نا, حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے, اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے. کچھ تو ہوگا, لیکن خیر. اور یہ چند قدم کا فاصلہ, منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد, اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے, اور حجرہ رسول کا دروازہ, چند قدم کا فاصلہ, شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا, وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا, چلا ہی نہیں جا رہا. دونوں جانب سے سہارا دیا, پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا. پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے اور بڑی مشکل سے منبر پہ جا کے بیٹھے اور کہا کہ اے مسلمانوں, میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا. کہا کہ اے مسلمانوں, اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے. اللہ اللہ, اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہے, قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی. کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے, میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے, ذاتی تکلیف, تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے, قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے. اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 2 جملے آپ نے سنے, نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے, تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی. اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو. جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے. جائیے کبھی کربلا میں آپ, ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
रसूल को देख के। और जब पैगंबर ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अब जो गिरिये में इजाफा हुआ, मस्जिद में कोहराम बपा हुआ, लोग पिलर और दीवारों से सर टकराने लगे। या रसूल अल्लाह, आप कैसी बात करते हैं? आपने तो हमें जीना सिखाया, आप तो रहमत बन के अपने साथ बरकतें लाए, आपसे कभी किसी के हक में कोताही हो ही नहीं सकती। मगर खाली जबान से नहीं कह रहे, दिल में भी यकीन। मगर एक आवाज आ गई, या रसूल अल्लाह, मैं खुद से कभी ना कहता। आपने 3 बार कहा जिसको मुझसे हक लेना है ले ले, हक ले ले, हक ले ले, इसलिए हिम्मत करके खड़ा हूं। सारा मजमा चौंका, कौन है ये आदमी? सब देख रहे हैं। उसने कहा, या रसूल खुदा, एक जंग के दरमियान माल गनीमत को ज्यादा जमा हो गया, हर मुसलमान घबरा के देखने आ रहा था कितना माल गनीमत, बड़ा मजमा हो गया, लग रहा था कुछ लोग मजमे में दब जाएंगे या गिर पड़ेंगे माल गनीमत पर। आपके हाथ में कोड़ा था, आप कोड़े को हिला के कहने लगे, दूर चले जाओ, हट जाओ, यहां करीब कोई ना। आपका कोड़ा मेरी कमर से टकरा गया। मैं कुछ ना कहता, इतने साल गुजर गए, मैंने आज तो कुछ ना कहा। खुद आपने 3 मरतबा ये बात कही। पैगंबर ने फरमाया, अच्छा मेरा कोड़ा तेरे बदन से टकराया, अपना हक ले ले। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा हूं हक लेने। करीब आए, मस्जिद में तो रसूल कोड़ा लेके नहीं आते। हसन और हुसैन को जो साथ में खड़े, बेटा मेरे हुजरे में जाओ और जो मेरा कोड़ा है वो लेकर आओ, यही कोड़ा उसके लगा होगा वो लेकर आओ। हसन हुसैन दौड़े दौड़े गए, कोड़ा लेके आ गए। नाना ये है कोड़ा, पैगंबर ने उसके हाथ में दिया। अच्छा ये बताइए, इस वक्त मस्जिद की क्या हालत होगी? क्या लोगों के गिरिये की भी कैफियत होगी और उससे लोग कह भी रहे, ऐ शख्स तू कौन है, तुझे पैगंबर की साथ में इतना रहम नहीं आ रहा? फिर तो ये बीमार भी है, ज़ईफ भी है, कमजोर भी है। उसने रसूल खुदा को देखा, या रसूल अल्लाह, लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं, अगर आप कहें मैं वापिस चला जाऊं। पैगंबर ने कहा, तुम लोग खामोश हो जाओ, कयामत मेरा मामला, ये वहां मुझसे लेने आ सकता है, तुम मत बोलो, इसको इसका हक लेने दो। अब पैगंबर का हुक्म आ गया, सब खामोश। एक एक जुमला हमें अजाब कब्र, अजाब कयामत याद दिलाने वाला। पैगंबर के करीब खड़ा है, कोड़ा भी हाथ में आ गया। पैगंबर ने कहा, अपना हक ले ले। कहा, या रसूल अल्लाह, हक तो फिर पूरा लिया जाता। जब मेरे बदन पे आपने कोड़ा मारा तो मेरे निचले जिस्म के ऊपर तो इहराम की चादर की तरह की एक चादर, ऊपर का बदन खोला था, मेरे नंगे बदन पे आपका कोड़ा लगा था और आपने कुर्ता पहना हुआ। पैगंबर ने कहा, कोई बात नहीं, कुर्ते के बटन खोले, कुर्ते को इस तरह से ऊंचा किया कि पीछे से पैगंबर की पुष्ट नजर आने लगी। मस्जिद की अजीब हालत हो गई, क्योंकि पैगंबर का अब जो बदन नजर आया, कमजोरी की वजह से गोया हड्डियां जाहिर हो रही। इतना कमजोर रसूल खड़ा नहीं हो सकता। कोड़ा, कौन गुस्ताख है, लेकिन क्या करे, पैगंबर ने मना कर दिया। और उस आदमी की जो सबसे अजीब हालत हुई, जैसे ही पैगंबर ने कुर्ता ऊंचा किया, जरा सा अपनी पुष्ट को खोला, मोहरे नबूवत नजर आने लगी। अरे कोड़ा एक तरफ फेंका, तड़प के मोहरे नबूवत के ऊपर किस तरह गिरा, बोसे पे बोसा, बोसे पे बोसा, बोसे पे बोसा। या रसूल अल्लाह, भला मेरी ये मजाल और हिम्मत थी कि मैं आपको कोड़ा मारता? मुझे तो मोहरे नबूवत की जियारत करना थी, इसलिए मैंने ये बात कही है। लेकिन मुसलमानों की चीखें अब पैगंबर के बदन को देख के निकल रही हैं। पैगंबर ने कहा, चलो, और तो कोई नहीं है। ये कह के पैगंबर हुजरे में आए, और जैसे ही हुजरे में आए तो देखा कि इंतहाई परेशानी के आलम में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तड़प तड़प के, कभी हाथ उठा के कोई दुआ करती है, कभी तड़प के मस्जिद को देखती है। कहा, बेटी तेरी ये क्या हालत है? कहा, बाबा अभी हसन और हुसैन आए थे और कह गए थे कि नाना ने कोड़ा मांगा है। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि एक मुसलमान नाना के कोड़ा मारना चाहता है। बेटी ने अपने बाप की हालत देखी है, आम मुसलमान दीवार से सर टकरा रहे हैं, ये तो फातिमा जैसी बेटी है। तड़प के कहा, बाबा अरे मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने हसन से कहा था, मैंने हुसैन से कहा था, बेटा हुसैन अपने आप को आगे पेश कर देना, कहना मेरे बदन पे कोड़ा मार ले, मेरे नाना के बदन पे कोड़ा ना मार। बाबा आपकी क्या हालत है?
पैगंबर ने वाकया सुनाया। मैं सिर्फ एक जुमला यहां कहता और फिर बस आखिरी 2 जुमले मसाइब के। शहजादी, यकीनन बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। आपने सुना बाबा के बदन पे कोड़ा पड़ने वाला, ये भी मालूम है कि हल्का सा पड़ेगा। वो आदमी कह रहा था ना कि आपका कोड़ा छू गया था मेरे बदन, तो आप बर्दाश्त ना कर सके। आपका भतीजा सज्जाद तो इससे ज्यादा कमजोर है, जब कूफा और शाम के पूरे रास्ते में कोड़े खाते हुए जा रहा हो। शहजादी, रसूल खुदा तो फिर भी एक मर्द है। अरे आइए राहे शाम में आपकी बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, आपकी पोती सकीना कितने कोड़े खाते जा रहे। और अब पैगंबर अब आज इस तरह से बिस्तर पे गिरे कि कल सुबह तक 28 सफर तक सिवाय वाजिब नमाजों के बिस्तर से न उठे। और ये 3 रातें पैगंबर की बड़ी तकलीफ में गुजरी। बेटी के कान में बाप की जरा सी आवाज आ जाए, आम बेटी की क्या हालत है, तो फातिमा जैसी बेटी है। और ये अहले बैत का घराना है। अहले बैत के घराने का मतलब आप समझे। 21 रमजान को मेरे मौला को नींद नहीं आ रही। कुलसूम ने देखा बाबा बिस्तर में करवटें बदल रहा। घबरा के कहा, बाबा क्या तकलीफ ज्यादा है? कहा नहीं, मुझे इब्ने मुलजिम के कर्राने की आवाज आ रही। ऐसा लग रहा है रस्सी को ज्यादा सख्ती से बांधा गया। जब तक कि उसकी आवाज बंद ना होगी उसे आराम नहीं आएगा। अली को आराम नहीं आ सकता। जो अपने कातिल की आवाज सुन के तड़प उठे वो अहले बैत, वो बेटी जब बाबा की आवाज सुन रही है, हर करवट पे बाबा कह रहा है तकलीफ। बेटी की क्या हालत हुई। बड़ी मुश्किल से 28 सफर की सुबह पैगंबर को 3 दिन बाद इतना आराम मिला कि आंख लग गई। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इधर पैगंबर की आंख लगी, उधर दरवाजे पे किसी की दस्तक की आवाज आई। 3 दिन मेरा बाबा तकलीफ से तड़पा। घबरा के फातिमा ने आहिस्ता से पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं रसूल खुदा से मुलाकात करना चाहता हूं। शहजादी ने कहा, 3 दिन के बाद मेरा बाबा एक लम्हे के लिए सोया। अभी मेरे बाबा को बेआराम न कर, थोड़ी देर के बाद आना। खामोशी। फिर एक मरतबा आवाज आई। शहजादी ने पूछा, कौन है? वही बोल रहा, पैगंबर से मुलाकात करना चाहता हूं। शहजादी ने कहा, अभी मेरा बाबा सोया, थोड़ी देर मेरे बाबा को आराम करने दो। 28 सफर यानी कल का दिन। जो सारी जिंदगी आपने मसाइब सुने, ये कल के मसाइब है। एक बार तीसरी मरतबा भी जब वही आदमी कहता है, फातिमा को जलाल आ गया। कहा कि ऐ शख्स, मैं बार बार बता रही हूं मेरे बाबा को भी आराम न कर। अब पैगंबर ने आंखें खोली। फातिमा बेटी से आने की इजाजत दे दी। ये वो है कि जब से कायनात बनी है आज तक किसी के दरवाजे पे नहीं रुका। इसने आज तक किसी से इजाजत नहीं मांगी है। ये अंबिया के दरवाजे पे गया, ये औलिया के दरवाजे पे गया, ये औसिया के दरवाजे पे गया, ये मुकर्रबान खुदा के दरवाजे पे, आज तक किसी दरवाजे पे नहीं रुका। लेकिन ये तेरे घर के दरवाजे का एहतराम है। आने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं आया, खुदा के हुक्म से आया है। लेकिन पता है खुदा के हुक्म पे भी अमल नहीं होगा जब तक कि मर्जी ज़हरा उसके साथ शामिल ना हो। बेटी, ये मलकुल मौत है। फातिमा ने कहा, अच्छा आ जा। मलकुल मौत आया, रसूल खुदा को लेके गया। एक बार बेटी ने दोनों हाथों से सर पीटा, आए मेरा बाबा मारा गया, अरे मैं यतीम हो गई, आए यतीमा फातिमा। शहजादी, मैं आपसे गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम अज कम इस वक्त, थोड़ी देर बाद के मसाइल तो मैं पढ़ रहा हूं, कम अज कम इस वक्त जब बाबा मारा गया और आपने हाय मैं यतीम हो गई की फरियाद की, आपको ये फरियाद तो करने, इस वक्त तो फरियाद करने दी गई ना। एक वो करबला की यतीमा थी, इधर कहा मेरा बाबा मारा गया, उधर से शिमर का तमाचा पड़ा, इधर से किसाए साहब का कोड़ा पड़ा। और वो आखिरी जुमले। लेकिन फातिमा के मसाइब भी कम नहीं है। अभी थोड़ी देर गुजरी है, आवाज आती है, फातिमा घर का दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारे घर का दरवाजा जला देंगे। हाय फातिमा, थोड़ी देर पहले मलकुल मौत रुक गया, हुक्म खुदा से आने वाला कहता है कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। ये कौन है? एक मरतबा
یقین ہے فاطمہ کو جب ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. ارے ملک الموت تو چھوٹا، میرا بابا کائنات کا سردار جب تک مجھ سے اجازت نہ لے میرے گھر میں داخل نہیں ہوتا. آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی، ایک بار آگ جلا کے اس طرح دروازہ کھولا کہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے فاطمہ دروازے کے پیچھے گئی. خالی دروازہ نہ کھولا، فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، موسی شہید ہوا اور بے اختیار فریاد کی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا. بابا آج آپ کی وفات کا دن نہیں آیا، فاطمہ کے مصائب شروع ہو گئے. اتنی مصیبتیں کہ دن راتوں میں بدل گیا. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن